Hello, bankers. So, very good evening to all of you. Welcome back. So, welcome to JIV CIB Prep. So, guys, from this particular session onwards, we are going to start with our final module, which is Module D. So, Module D is all around taxation, first part, where we have income tax and GST. And another part is costing. Okay, so 90% question will be based on costing. कॉस्टिंग से रिलेटेड जो आपके टॉपिक हैं उनके ऊपर, ठीक है, एंड यूल गेट 3 to 4 न्यूमेरिकल्स ऑल्सो, ठीक है, एंड अदर कॉस्टिंग मेथड्स और कॉस्टिंग टाइप्स इन ऑल, ठीक है, एंड देयर विल बी 2 or 3 क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनकम टैक्स एज वेल एज जीएसटी. सो वेरी स्मॉल पार्ट, ठीक है. अगर हम इनकम टैक्स और जीएसटी को पढ़ते हैं, दे आर इटसेल्फ एंटायर यूनिट, ठीक है, बट आपके करिकुलम के अंदर उतना डिटेल में नहीं है. बेसिक चीजें आपकी हैं, ठीक है, तो जिनको आज हम लोग लाइक विद द हेल्प ऑफ दीज 2 सेशन वी विल बी कवरिंग ऑल दी सब टॉपिक्स which are generally part of these 2 unit, right? So today, like first let's have a look about the module D, which is around the taxation and fundamental of costing. Okay? So first unit 29, which we are going to cover in today's session: taxation, income tax, TDS and deferred tax. Then we have GST. Then we have an overview of cost and management accounting, costing methods, standard costing, marginal costing, budget and budgetary control. ठीक है, so विटेज मैंने आपको बता दिया है. And if you talk about the numerical question, all the units of this particular unit are equally important, so you can expect 1 or 2 questions based on this, similarly based on this also, ठीक है. कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं, 1 or 2 क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट. कॉस्टिंग मेथड्स आपका, जहां पे बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग और आपका जॉब कॉस्टिंग, एंड उनसे रिलेटेड जो आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं या जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है. Standard costing and marginal costing, very important one, and budget and types of budget and budgetary control. So these are the units which are generally part of this particular unit. ठीक है, तो यहां से आपको अराउंड मतलब वेटेज आपका होगा दैट इज इक्वल टू अदर्स ऑल्सो, ठीक है. बट हाँ, जो क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे मोस्टली किस फॉर्म में हो सकते हैं या किस टाइप के क्वेश्चन पास्ट में पूछे गए थे, दैट वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस वन बाय वन, ठीक है. सो टुडे वी विल स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट यूनिट विच इज टैक्सेशन. तो टैक्सेशन, it is an overview of income tax act. Then we have TDS and TCS, classification of income taxpayers, classification of income head, income are not included in total income. Then we have deduction to be made in computation of total income. Then we have income new tax regime, filing IT returns, applicable return for income tax, assessment, refund, recovery and deferred tax. ठीक है, out of these given topics, so TCS and TDS 1 question each, half marks, ठीक है, जो आपको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है. क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम हेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. सो देयर आर 5 हेड, तो 5 हेड आपका जो जिसमें से कई बार टेस्ट किया जाता है, ठीक है. न्यू टैक्स regime, especially that standard deduction was the question last year and even the previous session also. यहाँ पे आपका जो न्यू टैक्स regime के अंदर आपका जो चेंजेस अभी आए हैं, ठीक है, उनके ऊपर आपको क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है. एंड दिस डेफर्ड टैक्स, तो ये कुछ सब टॉपिक्स आपके हैं जो मोस्टली पिछले एग्जामिनेशंस के अंदर आपका पूछे गए हैं, एंड यू कैन expect questions based on these particular one in your coming years also. So let's start our today's practice guys with very first question. तो हम लोग थोड़ा सा डिटेल में आपका डिस्कशन भी करेंगे और इसके अराउंड कहीं ना कहीं जो आपके किस टाइप के एमसीक्यूज और केस स्टडीज आपको पूछे जा सकते हैं उनके ऊपर बात करेंगे, ठीक है. सो इनकम टैक्स, it is like if you talk about the Indian structure, it is generally based on ability to pay principle. Income Tax Act 1961 एंड इनकम टैक्स रूल 1962, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग आपका चीजें होती हैं. एंड इट इज ड्रिवन बाय लाइक बेसिकली every year with union budget, government they generally made some changes, certain changes in your income tax slab and all, for individual, for corporates or HUF or others. So that generally get implemented through finance act of that particular year. जैसे 25-26 का बजट प्रेजेंट किया गया,
So now in the parliamentary session, government will basically come up with that particular proposal and they'll pass that particular bill that is generally known as Finance Act 2025, जिसमें जो नए टैक्स रिजीम है उसको आपका अप्रूव किया जाएगा। और अगर कोई और चेंजेस भी हैं लाइक स्टैंडर्ड डिडक्शन, लास्ट ईयर वी इंक्रीज इट फ्रॉम 50,000 टू 75,000, और भी जो अदर चेंजेस हैं दे विल बी पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर वन। ठीक है, सो अंडर द Constitution of India, central government is empowered to levy tax on income. Accordingly, the central government has enacted Income Tax Act 1961 and Income Tax Rule 1962. Okay. The act provide for the scope and machinery for the levy of income tax in India. Income tax is based on ability to pay principal, and we have progressive tax rate in India. Progressive means जितना ज्यादा आपका इनकम होता जाएगा उतना ज्यादा आप टैक्स पे करेंगे। ठीक है, टू कीप और रिकॉर्ड ऑन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन टैक्स पेमेंट स्टेटस ऑफ अ पर्सन, सो वी हैव अ पैन नंबर। ठीक है, सो परमानेंट अकाउंट नंबर आपका जो जिससे ये सारे ट्रांजेक्शंस आपके लिंक होते हैं। ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ, देन वी विल एंटर टू द क्वेश्चंस आल्सो। ठीक है, और ये सारी चीजें हम बहुत ही ज्यादा डिटेल में आपका अपनी कॉन्सेप्ट क्लास के अंदर कवर अप कर चुके हैं। ठीक है, तो जितना रिक्वायर्ड है दैट वी हैव ऑलरेडी डन। ठीक है, सो every person who earn or get an income in India subject to income tax. Non-resident Indian are also subject to income tax on their income earned in India, जिसमें आपका NRO accounts के अंदर हो या SNRR के थ्रू हो। ठीक है, the levy of income tax in India is governed by Income Tax Act 1961, Income Tax Rule 1962. Income Tax Act 1961 provide for levy administration, collection and recovery of income tax. The finance budget presented every year in the month of February or 1st February, we can say, bring various amendment in the Income Tax Act 1961. Such amendment, if approved, become part of Income Tax Act through Finance Act. The act contain detailed provision on important topic like computation of income, exemption and deductions available, tax slab, calculation of tax liability, format of written from applicable to different SSCs and all. ठीक है, जैसे आपका देर आर 7 टाइप ऑफ आइडियाज। ठीक है, तो आपके कोर्स करिकुलम का पार्ट नहीं है, बट इफ यू गो थ्रू दैट पर्टिकुलर वन, सो वी हैव 7 डिफरेंट, जिसमें 4 आपका फॉर इंडिविजुअल, देन आपका कंपनीज, HUF या अदर्स, इनके लिए जो देखने के लिए मिलेंगे, जो हमने कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट क्लासेस के अंदर आपका डिस्कस भी किए थे। और ऑलराइट, चलो नाउ इट्स टाइम फॉर प्रैक्टिस। अब हम सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर बात करेंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस वी विल रिवाइज आवर कॉन्सेप्ट एज वेल एज वी विल प्रैक्टिस like maximum question based on all those subtopics. Very first question, under Income Tax Act 1961, which of the following is not considered as income? ठीक है, तो we have 5 head: income from salary, income from property means rental income, ठीक है, income from business or profession, income from capital gain, and the final one is income from other sources. ठीक है, जैसे आपका सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट, लॉटरी इनकम एंड ऑल, दे जनरली कम्स अंडर दैट वन. सो सैलरी रिसीव फ्रॉम एन एम्प्लॉयर, it is income from salary. Interest on earn on fixed deposit, it is generally come under the income from other sources. Compensation received from an insurance company for personal injury, okay, this is not considered as a taxable income. ठीक है, इसको हम taxable income आपका consider नहीं करते हैं. ठीक है, rental income from house property, it is income from house property. So what will be our correct answer? Not considered. It is not a taxable income. ठीक है, ये आपका taxable income के अंदर नहीं आता है. ठीक है, so these are the 5 heads जो मैंने आपको पढ़ाए थे सेम स्लाइड के साथ. आई होप यू गाइस रिमेंबर दिस थिंग. सो इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम अर्न फ्रॉम सैलरी एंड पेंशन इज टैक्सेबल अंडर दिस हेड. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आपका रेंट, so basically income earned from renting a house property is taxable under this. Capital gain, so surplus income from sale of capital assets such as mutual fund, shares, properties and all. Business and profession, we have profit earned by self-employed individual, businesses, freelancers, contractors. Income earned by professionals like insurance agent, chartered accountants, doctors, lawyer, teachers. So they comes under this. And other sources which include income from saving bank account interest, fixed deposit, winning a lottery is taxable under this particular head. ठीक है,
तो ये सबसे पहला आपका जो आपके बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होना चाहिए. सो आई रिकमेंड प्लीज डू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर वन. दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट. ठीक है, तो दिस शुड बी पार्ट ऑफ योर रिविजन. ठीक है, फॉर श्योर यू कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन फॉर हाफ मार्क्स और मल्टीपल क्वेश्चन. मतलब इसका कॉम्बिनेशन बना करके दे कैन आस्क फॉर 1 मार्क्स एज वेल. ठीक है, अंडर विच हेड ऑफ इनकम डू वी शो इनकम फ्रॉम लॉटरीज. तो अभी हमने डिस्कशन किया इट कम्स अंडर अदर्स. ठीक है, तो किसमें आता है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. ठीक है, सो फिक्स विनिंग लॉटरीज taxable under this particular one. ठीक है, so income from other sources will be right answer for this particular one, which is the fifth or last here. ठीक है, under which section of the income tax act an SSC claim deduction for donation made to specified funds or a charitable institution. So अब देखो यहाँ पे ना there are some sections जहाँ पे अगर आप just these are something related to investment, royalties और अदर्स. तो जहाँ पे अगर आप अपना पैसा स्पेंड करते हैं ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड और फाइनेंशियल ईयर, सो यू विल गेट सम रिबेट. गवर्नमेंट दे जनरली प्रोवाइड सम रिबेट ऑन दोस पर्टिकुलर वन. ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे किसके समझ में टैक्स एसएससी क्लेम डिडक्शन अंडर डोनेशन, तो डोनेशन किस में आता है 80G के अंदर. ठीक है, सो व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर, सेक्शन 80G will be right answer for this particular one. ठीक है, so section 80Z provide deduction for donation made to approved charitable institution, relief funds and NGOs. The deduction by may be 50% or 100% of donated amount depending on the organization. Apart from this, section 24 subsection B is very important, interest on home loan deduction. This question will be also part of your RBWM. ठीक है, RBWM के अंदर बहुत बार पूछा जाता है ये सेक्शन. ठीक है, 80C आपका वेयर वी हैव डिडक्शन फॉर इन्वेस्टमेंट लाइक PPF, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स, LIC प्रीमियम एंड ऑल, एंड द लिमिट इज 1 लाख. ठीक है, सेक्शन 10D एग्जेम्पशन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोसीड्स आपका. ठीक है, सो दैट इज द वन. तो ये थोड़ा सा आपको जो ध्यान रखना है. ठीक है, so here we have a list also. ठीक है, तो प्लीज क्विकली गो थ्रू दिस पर्टिकुलर लिस्ट. ये लिस्ट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जिसमें 80C आपका 1,50,000. ठीक है, 80D आपका मेडिकल इंश्योरेंस. ठीक है, so if it is for self and parents 50,000, self parents above 60 so it is 75,000, both self parents above 60 1 lakh. ठीक है, 80D आपका मेडिकल इंश्योरेंस सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रंस 25,000, सीनियर सिटीजन और पेरेंट्स 50,000. 80ZZ रेंट पेड HRA नॉट क्लेम्ड. 80E आपका एजुकेशन लोन. ठीक है, अवेलेबल फॉर 8 years एंड देयर इज नो लिमिट. ठीक है, जितना अमाउंट आपने पे किया सारा. ठीक है, इंटरेस्ट का. 80E इंटरेस्ट ऑन होम लोन फॉर फर्स्ट टाइम होम बायर्स, हाउस बायर्स 50,000. 80U सेल्फ person suffering with disability for like for the taxpayer it is 75,000. Sorry, for partial disability it is 75,000, for full disability it is 1,25,000. 80 TTA interest on saving account and the deduction limit is 10,000. Okay, so these are some deductions which are available to us. Okay, so as a income tax payer, so we can avail these particular one by investing or by making investment in these particular areas. All right, next income tax form. ठीक है, so as I told you ना, we have 7 different type of ITRs. ठीक है, 7 different type के ITRs आपको मिलेंगे. जैसे हम लोग क्या फिल करते हैं मोस्टली एज ए बैंकर और नॉर्मल इनकम वाले जो लोग होते हैं ITR 1 फाइल करते हैं. ठीक है, सो जिससे इंडिविजुअल रेजिडेंट हैविंग इनकम सैलरी वन हाउस प्रॉपर्टी अदर सोर्सेज. ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम लेस देन 55,000 10. ठीक है, और आपका विद अ टोटल इनकम अप टू 50 lakhs. ITR 2 कौन फाइल करता है, अगेन इंडिविजुअल एज वेल एज HUF नॉट हैविंग बिजनेस और प्रोफेशन अंडर पार्टनरशिप. ITR 3 आपका इंडिविजुअल HUF हैविंग इनकम प्रोप्राइटरी बिजनेस और प्रोफेशन. फोर्थ आपका इंडिविजुअल HUF हैविंग प्रिजम्पटिव इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन. 5 पार्टनरशिप फर्म और LLP. 6 कंपनीज एंड 7 आपका ट्रस्ट. ठीक है, तो ये 3 आपका जनरली किसके लिए है यहाँ पे. तो इंडिविजुअल दे कैन हैव दीज 4 टाइप ऑफ ITR एज पर देयर इनकम सोर्सेज एज वेल एज देयर इनकम like the level of income as well. Understood? समझ में आया सबको. चलो आगे बढ़ते हैं.
Under the Income Tax Act 1961, which of the following transaction is not subject to TDS? तो इनमें से TDS किस पे आपका एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है? टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, which is a form of advance tax, which get deducted at the source, right? So interest paid on fixed a deposit exceeding 40,000 for senior that is 50,000, it is applicable, ठीक है? तो अगर कोई सीनियर लाइक जैसे लेट्स से यू हैव एफडी विद एनी बैंक, सो अगर आपका जो एनुअल इंटरेस्ट है इफ इट इज मोर देन 40,000 एंड अबव, इट इज subject matter of TDS deduction. For senior citizen, it is 50,000. So here, in this particular case, TDS will be applicable. Rent paid to a resident exceeding 2,40,000 per annum, it is also a subject matter of TDS. Salary paid to employee below the taxable income threshold. Salary paid to employees below the taxable income threshold. It is okay. In commission paid to agent exceeding 15,000, this is also. So C should be right answer for this one. I just want to check this one. ठीक है, yes हाँ, ठीक है. So C जो आपका इसका क्या है, आपका करेक्ट आंसर, ठीक है. जो टैक्स स्लैब्स आपके हैं, जैसे आपका एक इनकम टैक्स फ्री लेवल आपके हैं, ठीक है. लेट्स से इट इज 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं होगा, तो दैट मींस इफ द सैलरी इज लेस देन 3 लाख, it is not a subject matter of TDS deduction, ठीक है. So interest on FD, section 194A, mandate TDS at 10% if interest exceeds 40,000 for normal, senior citizen 50,000. Please do remember these. Rent payment, section 194I, require TDS 10% on rent annual exceed to 2,40,000. Commission 194H, mandate TDS at 5% ऑफ कमीशन एक्सीड 15,000, ठीक है. एवरीथिंग देखिए, ये जो टीडीएस की सारी कहानी है ये आपका सेक्शन 194 से आपका ड्रिवन होती है, ठीक है. हाउएवर टीडीएस इज नॉट डिडक्टेड आपका ऑन सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज इनकम जिनका बेसिक आपका 10 है, या आपका दिस इज समथिंग आपका जो करंट टैक्स स्लैब के हिसाब से जो चीजें आपके होंगे, ठीक है. आई गेस एज पर द करंट स्लैब इट इज 3 लाख, प्रीवियस इट वाज 2,50,000, ठीक है. तो इस तरीके से जो आपके रहते हैं. अब नाउ फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द गेम ऑफ टीडीएस. टीडीएस का गेम क्या है? सो टीडीएस क्या होता है आपका, ये सेम चार्ट के साथ मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लास के अंदर भी इसको समझाया था. इट इज अ फॉर्म ऑफ एडवांस टैक्स. लेट्स से यू आर वर्किंग विद अ बैंक, XYZ बैंक, ठीक है. आपका जो सोर्स है, दिस इज योर सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है. ये आपका क्या है, सोर्स ऑफ इनकम है जहां से आपके पास पैसा आ रहा है, ठीक है. सो लेट्स से योर एनुअल सैलरी इज 12 लाख, ठीक है. आपकी जो एनुअल सैलरी है वो कितनी है, आपका 12 लाख रुपए है, ठीक है. अब जैसे लेट्स से यू स्टार्टेड वर्किंग विद दैट पर्टिकुलर बैंक फ्रॉम 1 अप्रैल अज्यूम, ठीक है. तो दैट मीन्स आपकी 1 लाख पर मंथ की क्या होगी, आपका सैलरी होगी. बट वी डू नॉट गेट 1 लाख पर मंथ, ठीक है. अभी हम नए नए बैंक के अंदर लगे हुए हैं एंड वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट अज्यूम दैट, ठीक है. तो अब क्या होगा, जैसे आपका 1 लाख रुपए का क्या है, आपका कहीं ना कहीं मंथली सैलरी है. सो लेट्स से एज पर द टैक्सेशन, ठीक है, आप टैक्स कैलकुलेशन के हिसाब से अज्यूम दैट योर ओवरऑल टैक्स लाइबिलिटी वाज ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड इज सपोज दैट 1.20 लाख, ठीक है. एज पर द टैक्स रेजिम कैलकुलेशन योर टैक्स लाइबिलिटी वाज सपोज दैट 1,20,000, ठीक है. आई विल डिस्कस द एग्जैक्ट केस विद द हेल्प ऑफ द न्यू टैक्स रेजिम, ठीक है. बट अभी हम इसको जस्ट समझते हैं, ठीक है. सपोज दैट कि आपको आपकी जो सैलरी पे जो टैक्स लगना चाहिए वो कितना, आपका 1,20,000. इतना नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? अगर आप जैसे अगर आपने जैसे पिछले अप्रैल में ज्वाइन किया, ठीक है, पिछले अप्रैल से मतलब फाइनेंशियल ईयर 24-25 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अज्यूम दैट, ठीक है. सो 24-25 में आपका जैसे अलग अलग टैक्स स्लैब थे ना, 3 लाख तक आपका कुछ नहीं, 3 लाख टू 5 लाख 5%, 5 टू 7 लाख आपका 10%, 7 देन आपका 7 टू 10 लाख आपका 10%, देन 10 टू 12 लाख, 12 टू 15 लाख, 50 मोर देन 15 लाख. इस तरीके से हमारा वो बना था. 20% मोर देन 20 लाख आपका 30%. इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर था. 75,000 इज स्टैंडर्ड डिडक्शन, मतलब 12 लाख में से सीधा 75,000 माइनस होगा. आपकी जो टैक्सेबल इनकम होगी दैट विल बी 11,25,000, ठीक है. तो जैसे अप्रैल आएगा ना, आई विल कम विद द प्रॉपर कंप्यूटेशन आल्सो, और जो नया स्लैब है उसके साथ भी मैं आपको इसको समझाऊंगा अभी, ठीक है. बट अभी जस्ट रेफरेंस के लिए मान लो कि सपोज दैट दिस पर्सन टैक्सेबल इनकम वाज 1,20,000. अब इन्होंने क्या किया, आपका 1,20,000 डिवाइड बाय 12, उन्होंने उसको 12 महीने में बांटा. एंड व्हाट दे जनरली डिड, अज्यूम की हर महीने उन्होंने उसकी सैलरी में से 10,000 का टीडीएस आपका डिडक्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है. So now that means they are actually paying you 1 lakh minus 10,000, 90,000.
इसके अलावा कोई और डिडक्शन है वो भी हटा करके 90,000 रुपए वो आपको दे रहे हैं। सो नाउ व्हाट दिस सोर्स, ये जो आपका बैंक है क्या कर रहा है, 10,000 रुपीज आपकी सैलरी में से काट रहा है, अपने पास नहीं रख सकता। अगर अपने पास रखेगा तो इस पे पेनल्टी लगेगी 1.5% की, 1.5% की, ठीक है। सो व्हाट दे डू, दे डिपॉजिट दिस पर्टिकुलर मनी विद आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ डिपॉजिट करेंगे एंड दे रिसीव द टीडीएस सर्टिफिकेट जो आपको दिए जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ फॉर्म 16, ठीक है। सो टैक्स पेयर डिडक्ट द टैक्स फ्रॉम द पेमेंट, इट इज अ फॉर्म ऑफ एडवांस टैक्स। ये एडवांस में जो आपको ये टैक्स पे करना था पूरे साल भर में, उसमें से उन्होंने एडवांस में हर महीने 10,000 निकालना शुरू कर दिया, ठीक है। दूसरा, पेयर डिपॉजिट टू दी सेम टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, पेयर फाइल फॉर टीडीएस रिटर्न, ठीक है, पेयर इशू टीडीएस सर्टिफिकेट टू पे क्लेम रिफंड ऑफ द टीडीएस इन रिटर्न। अब जैसे सपोज दैट इसका टैक्स लायबिलिटी, मतलब जो बैंक है उसने 1,20,000 रुपए का टैक्स उसकी ओवरऑल सैलरी में से डिडक्ट कर लिया थ्रू आउट द ईयर। नाउ लेट्स से इन बिटवीन आपने कोई एजुकेशन लोन लिया था एंड यू पेड एजुकेशन लोन वेयर योर इंटरेस्ट पेड वाज 1,20,000, ठीक है। आपने या अज्यूम की योर इंटरेस्ट पेड ऑन होम एजुकेशन लोन वाज 80,000, ठीक है, 80,000 रुपए। तो अब 1,20,000 जो आपने ऑलरेडी दे दिया है एडवांस में माइनस 80,000, ठीक है, दैट मीन्स योर एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी वाज 40,000, ठीक है। तो अब 80,000 सरकार के पास ज्यादा चला गया, सो फॉर दैट सेक व्हाट यू विल डू, यू विल फाइल आईटीआर, ठीक है। सो आप आईटीआर 1 फाइल करोगे एंड उसके थ्रू गवर्नमेंट विल रिफंड योर 80,000, ठीक है। सो इट इज अ फॉर्म ऑफ एडवांस टैक्स, ये क्या है आपका एक एडवांस टैक्स की फॉर्म है, ठीक है। Tax deduction at source. TDS is amount tax which is deducted by employer or deductor from the taxpayer. ठीक है, so taxpayer means you in that case and deposited to income tax department on behalf of him or her. Tax deducted at source is a type of advance tax that गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवाइज ऑन पीरियोडिक बेसिस, बेसिकली जैसे जैसे आपका सोर्स से पैसा आएगा, ठीक है, आपको एफडी का इंटरेस्ट मिला तो उसी समय उन्होंने काट एट सोर्स जहां से पैसा आ रहा है, ठीक है। डिडक्टेड टीडीएस इज क्लेम अ टैक्स रिफंड आफ्टर अ टैक्स पेयर फाइल दी इनकम टैक्स रिटर्न। अब ये किस कंडीशन में होगा, व्हेन लेट्स से योर टैक्स लायबिलिटी इज सपोज दैट 1.20 लाख at the beginning, एक्चुअल वॉज, ये तो आपका एस्टिमेटेड था, एस्टिमेटेड दिस था एट द बिगिनिंग, एक्चुअल क्या था आपका, एक्चुअल वॉज सपोज दैट आफ्टर ऑल डिडक्शन इट वॉज ओनली 40,000, ठीक है। अब आपने ये जो गैप है एक्स्ट्रा, जो 80,000 एक्स्ट्रा दिया है फॉर दैट से, ठीक है, आईटीआर आप फाइल करेंगे उसके थ्रू आपको 80,000 क्या होगा वापस मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा केस बी, दिस इज एस्टिमेटेड बट इन बिटवीन यू गॉट सम, आपका जैसे इन्वेस्टमेंट से रिटर्न मिला, इंटरेस्ट मिला, योर एक्चुअल लाइबिलिटी वाज सपोज दैट एक्चुअल वाज 1,50,000। तो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, अगर ज्यादा होता तो क्या होगा, यू हैव टू डिपॉजिट 30,000 विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। आपको 30,000 रुपए क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा इन दैट केस। फॉर दैट सेक वी हैव यूपीआई, ठीक है, अभी बजट में भी बोला गया था पहले भी, जहां पे यूपीआई की मदद से आप क्या करेंगे, ये टैक्सेस आपका पे करेंगे। ऑलराइट गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो दीज आर सम एरियाज, जैसे आपका रेंट पे, सैलरी पेमेंट, कॉन्ट्रैक्टर्स पेमेंट्स, अमाउंट अंडर LIC, आपका प्रोफेशनल फी, इंटरेस्ट आपका सिक्योरिटीज अदर देन सिक्योरिटीज, डीम डिविडेंड आपका, कमीशन, ब्रोकरेज, इंश्योरेंस कमीशन, ठीक है। दीज ऑल आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ टीडीएस डिडक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो। If deductor failed to deposit TDS amount to the government within the due date, what is the applicable interest penalty under the Income Tax Act? ठीक है, आपके बैंक ने TDS डिडक्ट किया, so they have to file that TDS ऑन क्वार्टरली बेसिस, ठीक है। आपको मैसेज भी आता होंगे क्वार्टरली बेसिस पे कि वी हैव रिसीव दिस मच ऑफ टीडीएस अगेंस्ट दिस स्पेन, वो पूरे क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे आपको भेजता रहेगा रिपोर्ट, ठीक है। अब आपके बैंक ने आपकी सैलरी में से तो काट लिया, बहुत सारी कंपनीज ऐसा हुई हैं जो टैक्स के विवाद में फंसी हैं, ठीक है, दे डिडक्टेड फ्रॉम देयर सैलरीज बट दे डिड नॉट डिपॉजिटेड दैट अमाउंट विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो व्हाट गवर्नमेंट विल डू, दे विल मेक पेनल्टी। सो यहाँ पे क्या होगा, 1% पर मंथ और a part of the months from the due date, 1.5% per month और a part of months from the date of the deduction, ठीक है। तो 1.5% पर मंथ का यहाँ पे क्या लगेगा, पेनल्टी लगेगा, so that is the one, ठीक है। so 1.5% or part of the month from the date of deduction, ठीक है। so if TDS is
नॉट डिडक्टेड, अगर उन्होंने डिडक्ट नहीं किया था, ठीक है, देयर आर टू केसेस, ठीक है, एक तो था कि उन्होंने डिडक्ट किया और जमा नहीं किया 1.5%, दूसरा उन्होंने डिडक्ट ही नहीं किया, ठीक है, उस केस में भी पेनल्टी झेलना पड़ेगा 1% पर मंथ और अ पार्ट of the months from the due date of deduction, deducted but not deposited 1.5% per month और 10, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान रखिएगा इसको, ये आपकी जर्नल उसके लिए भी है, नॉलेज के लिए भी, और कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में भी हेल्प करेगा. A bank pays 60,000 as interest on fixed deposit to a resident individual in a financial year. Under what condition will the bank not deduct TDS under section 194A? ठीक है, किस कंडीशन में आपका, देर आर टू फॉर्म जी एंड फॉर्म एच, जी फॉर इंडिविजुअल आपका हमारे जैसे लोगों के लिए, एच फॉर सीनियर सिटीजन, ठीक है. सो द इंडिविजुअल सबमिट फॉर्म जी एंड एच डिक्लेयरिंग नील टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है. तो जैसे अगर लेट्स से देयर इज अ पर्सन जिसकी एफडी है और उसकी एफडी पे उसको 80,000 रुपए या 60,000 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है. सो दे कैन लाइक इफ दे डू नॉट वांट कि उस 60,000 का 10% डिडक्ट ना हो, उनको पूरा अमाउंट मिले, सो व्हाट दे हैव टू डू इन दैट केस, दे हैव टू सबमिट अ फॉर्म विद योर बैंक व्हिच इज कॉल्ड फॉर्म जी इन केस ऑफ नॉर्मल, एंड फॉर सीनियर सिटीजन इट इज फॉर्म एच. तो जहां पे दे कैन क्लेम दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है. तो आपका दिस विल बी द राइट आंसर, ए ओनली इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, ठीक है. द इंडिविजुअल सबमिट फॉर्म जी एंड एच डिक्लेयरिंग नील टैक्स लाइबिलिटी. तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, प्लीज पे योर अटेंशन, ठीक है. ये चीजें आपको हेल्प करेंगी, ठीक है, ऐसी चीजें पढ़ो कि मतलब लाइफ में भी काम आए, ठीक है, और एग्जाम में भी. सेक्शन 194A रिक्वायर टीडीएस डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट पेमेंट एक्सीडिंग 40,000 और 50,000 फॉर सीनियर सिटीजन पर फाइनेंशियल ईयर ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट. पहले तो क्लॉज क्या है, if as a individual I'm receiving 40,000 or above interest, so it is a subject matter of TDS, ठीक है. या senior citizen they are receiving interest more than 50,000, so that is a subject matter of TDS. It can be avoid, हम इसको अवॉइड कर सकते हैं by filing that form if my income is nil, जैसे मेरे अगर कोई इनकम नहीं है, ठीक है. An individual can submit form Z those below 60 years or form H those who are senior citizen above that if their total taxable income is below the exemption limit, ठीक है. तो अगर उनकी जो exemption limit से नीचे है, ठीक है, कई सीनियर सिटीजन जैसे वो अब ये वर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उनकी कोई इनकम सोर्स नहीं है बट उनके कोई एफडी है, तो दे कैन हैव दिस पर्टिकुलर वन. या कोई आपका कोई ऐसा चाइल्ड जिसके ऊपर एफडी करा रखा है, ठीक है, आपके अमीर पेरेंट्स ने, ठीक है, तो जिस पे इंटरेस्ट मिला, तो देख अगर उसकी इनकम नहीं है ही कैन ऑल्सो सबमिट दिस, ठीक है. Splitting payment across multiple branches does not avoid TDS, ठीक है, और पेन सबमिशन does not exempt TDS but आपका लोअर रेट, ठीक है. जैसे अगर विद पेन, अगर पेन है तो 10%, अगर पेन नहीं है उस पर्सन का इट विल बी 20%, ठीक है, हमेशा डबल हो जाएगा. पेन नहीं, या जहां पे वी डू नॉट हैव अवेलेबिलिटी ऑफ पेन, सो इट विल बी चार्जेस और योर TDS चार्ज विल बी डबल इन एवरी केसेस, ठीक है, मोस्ट ऑफ them. Under section 206C subsection 1 it is something related to TCS, tax collection at source, ठीक है. At what rate TCS, हाँ, it is something related to TCS. तो मतलब Income Tax Act 1961 section 206C 1Z, जहां पे there are some items which are subject matter of TCS collection, tax collection at source, जिनको additional tax पे करना पड़ता है. जैसे होता है ना, लाइक इफ यू बाय अ लग्जरी कार वर्थ रुपीज मोर देन 10 लाख, 10 लाख रुपए से ऊपर की कोई कार आप परचेज करोगे, सो 1% TCS, ठीक है. इफ यू परचेज जैसे कुछ आपका लीकर इन कंजम्पशन फॉर्म, तो उसके लिए आपका टैक्स, ठीक है, और फॉरेन रेमिटेंसेस, ठीक है. तो कुछ ऐसी कॉमोडिटीज आपका या कुछ ऐसी सर्विसेज जहां पे एक सर्टेन लिमिट के बाद कंजम्पशन होता है या परचेज सेल परचेज होता है, सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेलर, जो सेल कर रहा होगा उसको, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कलेक्ट TCS एंड डिपॉजिट इट विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इफ यू नॉट डिपॉजिट, सो देयर विल बी 1% पर मंथ आपका पेनल्टी विच विल बी इम्पोज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है. सो अब देखो ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है. सेक्शन 206C 1Z, at what rate TCS applicable on foreign remittances under LRS, ठीक है, liberalized remittance scheme, ठीक है. This is a scheme which was launched by RBI in 2004 under which
individual including minors, they can remit up to 2,50,000 US डॉलर पर फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो जैसे अगर आपको अब्रॉड जाना होगा या अगर कोई एजुकेशन के लिए जा रहा है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है, टूर एंड ट्रेवल के लिए जा रहा है, सो फॉर दैट सेक वी हैव वन स्कीम दैट इज नोन एज LRS, जिसके तहत हम 2.5 लाख डॉलर तक का रेमिटेंस कर सकते हैं एक साल में, बट इट इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ TCS वेयर थ्रेशोल्ड इज 7 लाख। इसमें मतलब अगर आप 7 लाख रुपए तक का रुपए, लिमिट इज 2,50,000 डॉलर, बट अगर आपका जो रेमिटेंस है वो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 7 लाख या उससे ज्यादा होता है, सो दैट इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ TCS। ठीक है, मतलब वहां पे TCS आपका एप्लीकेबल होगा। ठीक है, सो एक्सीडिंग 7 लाख, 7 लाख क्यों लिखा है, क्योंकि दिस इज अ थ्रेशोल्ड लिमिट। ठीक है, for educational related purpose if loan is taken from Indian financial institution, so what will be TCS rate? It is 0.50%। अब मैं इसको आपको एक केस से समझाता हूँ। आपको 3 चीजें याद रखनी है। पहला, अगर वो एजुकेशन रिलेटेड पर्पज है, ठीक है, एजुकेशन के लिए जहां पे लोन सोर्स ऑफ मनी इज बैंक लोन, ठीक है, उसने किसी इंडियन बैंक से लोन लिया है, फिर उसने आपका पढ़ने के लिए आपका विदेश में जा रहा है। ठीक है, सो लेट्स से देयर इज अ पर्सन कॉल्ड मिस्टर ए। ठीक है, एक पर्सन है आपका मिस्टर ए, स्टूडेंट, ठीक है, जिसने 10 लाख रुपए का रेमिटेंस किया फॉर एजुकेशन पर्पस। ठीक है, सो एजुकेशन पर्पस के लिए, एंड ही जनरली टुक दिस पर्टिकुलर लोन फ्रॉम अ बैंक। ठीक है, इंडियन बैंक से आपका लिया। तो इस केस में व्हाट विल बी TCS आपका 10 लाख माइनस 7 लाख, ठीक है, 7 लाख इज आपका रिबेट। तो 3 लाख रुपए के ऊपर उसको एट द रेट ऑफ 0.50% का क्या पे करना पड़ेगा, TCS पे करना पड़ेगा। दिस इज द केस इन दिस पर्टिकुलर। सेकेंड आपका, लेट्स से देयर इज अ पर्सन मिस्टर बी हु रेमिटेड 20 लाख रुपीज। ठीक है, पूरे साल भर में अलग अलग बार इसने 20 लाख रुपए का रेमिटेंस किया टुवर्ड द मेडिकल एक्सपेंस। ठीक है, ये अपने फैमिली का या अपना खुद का इलाज के लिए इसने 20 लाख रुपए का पैसा, जैसे रशिया में इसने अपना इलाज कराया तो उसके लिए 20 लाख रुपए इसने रेमिटेंस कराया। तो इस केस में 20 लाख माइनस 7 लाख अगेन सेम। ठीक है, तो 13 लाख के ऊपर एट द रेट ऑफ 5%। ठीक है, तो यहां पे कितना परसेंट आपका 5%। ठीक है, अब अपार्ट फ्रॉम दीज टू द रेट इज, इनके अलावा अदर्स आपका, अदर्स मतलब जैसे आप घूमने के लिए जाते हो, ठीक है, देयर इज वन पर्सन जो आपका वर्ल्ड टूर पे जा रहा है। ठीक है, एंड ही रेमिटेड सपोज दैट 50 लाख, तो 50 लाख रुपए माइनस 7, 43 लाख पे उसको कितना पे करना पड़ेगा, 20%। दिस बिकम इफेक्टिव, ये कब से इफेक्टिव हुआ आपका, विद इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024। ठीक है, पिछले साल से आपका। ठीक है, तो प्लीज डू रिमेंबर दीज 3 रेट है। एजुकेशन सोर्स ऑफ फंड इज, सोर्स ऑफ मनी इज होम लोन 0.50%, ये आपका एजुकेशन। आप दूसरा हेल्थ मेडिकल ट्रीटमेंट आपका 5%, अदर अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज 20%। ठीक है, तो पहले ये 5% होता था, लास्ट ईयर ही इसको आपका 20% किया गया। ऑलराइट गाइस, समझ में आया, हाँ है ना, थोड़ा लिख दिया करो कमेंट्स में समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कुछ डाउट है तो आप वो भी भेजा करें। ठीक है, सो एज पर द सेक्शन 10 TCS applicable on foreign remittances exceeding 7 lakh in financial year. For education related remittances, so it is 0.50, and for other remittances it is 20% excluding medical। मेडिकल के लिए कितना बताया मैंने आपको, 5%। ठीक है, तो मेडिकल के लिए कितना है आपका ये 5%। So next one, which of the following statement regarding TDS tax deduction at source is correct? Correct statement TDS के बारे में अब समझ में आ जाएगा। अभी पढ़ा, TDS is a system where individual or entity receiving, no। TDS is a system where payer receive, no। TDS is a system where individual or entity responsible for making payment deducted at a certain amount of tax and sent directly to the central government। ठीक है, तो हमारा क्या सही जवाब होगा इसमें, सॉरी, C will be right answer for this particular one। Alright, आगे बढ़ते हैं। If tax collector, a person who is responsible for collecting tax, did not collect tax and did not pay tax before or on due date, तो क्या होगा आपका आंसर बताओ। अभी हमने समझा था ना TDS के केस में या TCS के केस में, सो इट इज आपका 1% पर मंथ। यहाँ पे पर मंथ पूछा है तो इट इज 1% पर मंथ। ना तो उसने कलेक्ट किया ना ही, अब कलेक्ट नहीं किया तो सबमिट कहां से करेगा। ठीक है, सो इट इज अ केस ऑफ 1%। ठीक है, तो 1% का आपका TCS में भी सेम चीज आपका जो लगेगा।
नेक्स्ट वन, अंडर सेक्शन 194A टीडीएस पे काम करता है। ऑन प्री मेच्योर डिडक्शन अमाउंट विड्रॉल इज मोर देन 50,000 फ्रॉम ईपीएफ। अगेन नाइस क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसे हमारा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ठीक है। तो लेट्स से इन योर ईपीएफ अकाउंट यू हैव 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपए आपके ईपीएफ अकाउंट में जमा हुए। तो आपने सोचा यार चलो कहीं घूम के आते हैं, ठीक है। सो आपने क्या करा, विदेश घूमने जा रहे थे, आपके पास 5 लाख रुपए का सेविंग था, आपको 2 लाख रुपए और चाहिए थे, लग्जरी ट्रिप बनानी थी। तो आपने क्या करा, जो आपका ईपीएफ अकाउंट है उसमें से पैसा विड्रॉ करने का सोचा। यू कैन, आपके पास ये राइट है कि आप इसमें से क्या कर सकते हैं, पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। द ओनली रीजन इज, मतलब यहाँ पे क्या होगा आपका कि दो चीजें, मतलब इफ योर विड्रॉल इज मोर देन 50,000, मतलब 50,000 और मोर देन 50,000, ठीक है। 49,999 इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ टीडीएस, यहाँ पे टीडीएस नहीं लगेगा। बट 50,000 या उससे ऊपर होगा, सो यू हैव टू पे योर टीडीएस एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है। तो ये जो 2 लाख रुपए आप विड्रॉ करो, इसमें से 20,000 रुपए आपको टीडीएस की तरह जमा करने पड़ेंगे। ये नहीं करने पड़ेंगे किस केस में, देयर आर टू सिचुएशन, वन इज टर्मिनेशन ऑफ जॉब। जैसे कोई बंदा एक कंपनी में काम कर रहा था, वहां से वो टर्मिनेट हो गया, ठीक है। अब वो दूसरी जगह काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर रीजन आपका टर्मिनेशन है या फिर मेडिकल एक्सपेंस है, ठीक है, दीज टू रीजन, ठीक है, मेडिकल एक्सपेंस और टर्मिनेशन, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ड्यूरिंग द कोविड कोविड वॉज ऑल्सो रीजन, ठीक है, तीसरा जो हुआ करता था। बट नाउ वी हैव टू रीजन जो आपका यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। तो 10% विड्रॉल फ्रॉम ईपीएफ बिफोर एक्सपायरी ऑफ 5 years of service except in case of termination case or ill health or where the fail to apply for transfer of account to a new employer, ठीक है। तो टीसीएस, अच्छा ओके, ये टीसीएस वाला थोड़ा सा लेट आया है एक्चुअली, ये थोड़ा सा पहले आना चाहिए था क्वेश्चन, ठीक है। चलो नो बात, हम देख लेते हैं, ठीक है। So TCS tax collection at source is additional amount collected as a tax by a seller or specific good or services, goods and services आपका दोनों पे लगता है, ठीक है। बायर सर्विसेज में जैसा हमारा रेमिटेंस वाला आ जाता है, ठीक है। सो अ टैक्स कलेक्ट, टीसीएस इज अ टैक्स कलेक्टेड बाय सेलर फ्रॉम द बायर ऑन sale so that it can be deposited with tax authorities, section 206 subsection C, जैसे भी हमने पढ़ा, इनकम टैक्स एक्ट गवर्न दी गुड्स ऑन विच, मतलब ये गुड्स के संबंध में है आपका, और आई जो था वो आपका सी आई, दैट वाज समथिंग रिलेटेड टू सर्विसेज, ठीक है। इफ टैक्स कलेक्टर डज नॉट कलेक्ट, सो 1% पेनल्टी। टैक्स कलेक्टर मस्ट सबमिट क्वार्टरली, इसका भी आपका किसमें, फॉर्म 727 EQ के द्वारा उनको आपका सबमिट करना होगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। यू डू नॉट हैव टू रिमेंबर दिस, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पस, ठीक है। जैसे आपका लिकर एल्कोहलिक कंजम्पशन 1%, तो जो सेलर होगा दिल चार्ज 1% टीसीएस, ठीक है। इसके अलावा टिम्बर वुड आपका 2.5%, टेंड्यू लीव्स आपका 5%, ठीक है। टिम्बर वुड्स, स्क्रैप, ठीक है, आपका मिनरल्स, परचेज ऑफ मोटर व्हीकल्स एक्सीडिंग आपका 1 लाख, तो ये सारे गुड्स आपका जो 206C में आपका दिए। इसके अलावा आई के अंदर आपको सर्विसेज लाइक आर रेमिटेंस सर्विसेज एलआरएस, ठीक है। तो एलआरएस के ऊपर जो अपडेट था, दिस वाज द अपडेट विच वी हैव कवर्ड, ठीक है। तो बजट 23 के अंदर ये आया एंड विद इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024 ऑनवर्ड्स इट बिकम कितना आपका 20%, अर्लियर इट वाज 5%। तो आप मेडिकल और एजुकेशन को छोड़ के सभी में आपका कितना होगा, 20%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्विकली गो थ्रू द क्वेश्चन। DTL, deferred tax liability, this part is very important। अगले 2-3 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डेफर्ड टैक्स, देखो पहली चीज तो डेफर्ड टैक्स होता क्या, इट कैन बी एसेट, इट कैन बी लाइबिलिटी। जैसे क्वेश्चन आपका लाइबिलिटी के ऊपर है, अगला क्वेश्चन एसेट के ऊपर भी होगा, ठीक है। सो देखो क्या होता है ना, हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है, और जो जैसे लेट्स से यू आर रनिंग अ कंपनी, ठीक है, सो यू हैव टू फॉलो द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो उसके हिसाब से जो इनकम रिकॉग्निशन है उसके दूसरे लॉज हैं, और इनकम टैक्स के हिसाब से आपका टैक्स कंप्यूटेशन के या इनकम कंप्यूटेशन के दूसरे लॉज हैं। तो कई बार इनकी इन लॉज के अंदर जो डिफरेंसेस हैं उनकी वजह से, सपोज दैट देयर इज अ कंपनी, आपका कंपनी एक्स, जिसका टैक्स लाइबिलिटी वाज सपोज दैट 1 करोड़ एंड दे द टैक्स पेड इज, उन्होंने कितना पे कर दिया, सपोज दैट आपका 1.20 करोड़, ठीक है। मतलब फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25
their liability after the end of the year, their actual liability was 1 crore, but they have paid 1.20 crores to the government. ठीक है, मतलब इन्होंने 20 लाख रुपए का एडिशनल टैक्स आपका पे कर दिया है, which we will adjust in the coming years. So this will be known as deferred tax एसेट. इसको हम क्या बोलेंगे आपका, दिस विल बी अकाउंटेड एज, ये मतलब उस कंपनी के बैलेंस शीट में एसेट साइड में आपको देखने के लिए मिलेगा. और वाइस वर्सा, लाइबिलिटी वाज सपोज दैट दिस पेड इज दिस, तो उनकी आपकी वो क्या होगी, लाइबिलिटी, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी फॉर द ईयर्स. ठीक है, तो ये सब आपका जो कैलकुलेशंस, मतलब दोनों अलग अलग लॉज की वजह से जो डिफरेंसेस हैं इनकम को रिकॉग्नाइज करने के, उसकी वजह से इश्यूज आते हैं. ठीक है, तो टैक्सेबल इनकम इज हायर देन द अकाउंटिंग इनकम. Taxable income is lower than the accounting income. Both taxable income and accounting income are equal. नहीं equal होता तो फिर दिक्कत नहीं होता. There is no difference. नहीं, taxable income is higher than the accounting income. ठीक है, sorry कुछ गड़बड़ हुआ क्या? Taxable income liability है ना, हाँ, it is a liability case. ठीक है, तो taxable income is lower than the accounting income for the current period. ठीक है, so इस तरीके से आपका taxable income, नहीं, इट शुड बी रिवर्स एक्चुअली. ठीक है, ये थोड़ा सा ना इसमें कुछ गड़बड़ है आपका. ओके, डीटीएल आपका अराइज व्हेन एन एक्सपेंस इज डिडक्टेड फॉर अकाउंटिंग पीरियड. ठीक है, अकाउंटिंग पर्पस, एक्सपेंस इज डिडक्टेड फॉर अकाउंटिंग पर्पस बिफोर बीइंग अलाउड फॉर द टैक्स पर्पस. ठीक है, लीडिंग टू अ लोअर टैक्सेबल इनकम, तो इसकी वजह से वो क्या दिखाएगा, कम टैक्स दिखाएगा आपका. ठीक है, बट इट विल मेक एन इम्पैक्ट इन द फ्यूचर, जिसकी वजह से उसका टैक्स लायबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा. सो जैसे डेप्रीशिएशन अंडर द कंपनीज एक्ट, हायर इनिशियल ईयर्स ड्यू टू स्टेट लाइन मेथड. ठीक है, आपका इनकम टैक्स लोअर इन इनिशियल ड्यू टू आपका रिटन डाउन वैल्यू मेथड. तो ये जो दो अलग अलग मेथड आपके यूज कर रहे थे, एक आपका यूज कर रहा था स्टेट लाइन मेथड, दूसरा आपका यूज कर रहा था रिटन डाउन वैल्यू मेथड. तो जिनकी वजह से आपका कहीं ना कहीं जो इनकम रिकॉग्निशन आपका है वो क्या हो रही है, डिफरेंट वेज में आपका जा रहा है. ठीक है, तो एक बार देखते हैं डेफर्ड टैक्स. Deferred tax is a tax a company has already paid or will pay in the future. जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, to meet its obligation from accounting purpose, taxable income and accounting income may not be same as the taxable income is calculated in accordance with the tax laws, while accounting income is calculated by applying अकाउंटिंग पॉलिसीज. तो जैसे डिफरेंस कहां से आता है, टैक्सेबल इनकम आपका इनकम टैक्स को फॉलो करता है और ये आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को. और लाइक इवन इन अकाउंटिंग वन ऑल्सो, जैसे हम लोग जैसे एक एग्जांपल हमने डेप्रिसिएशन का लिया या इन्वेंट्री का है, या ऐसे बहुत सारे जो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में आपका डिफरेंशिएशन क्रिएट करते हैं कि इनकम को हम किस तरीके से रिकॉग्नाइज कर रहे हैं या एक्सपेंस को हम किस तरीके से रिकॉग्नाइज कर रहे हैं. ठीक है, डेफर्ड टैक्स कैन बी recorded when tax on income vary from the amount of tax a company has already paid. So for example, if a income tax for 1 year was calculated rupees 1000, but actual tax paid was 800. ठीक है, तो 200 rupees का क्या shortfall है, they have to make this particular payment in the coming years, so that's why that is liability. ठीक है, so deferred tax is 200 should be recorded for the year for income tax purpose. ठीक है, deferred tax can be also occur when there is a difference between taxable profit एंड आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट. ये सबसे बड़ा रीजन होता है आपका इसके लिए. ठीक है, ड्यू टू डेफर्ड एक्सपेंसेस और डेफर्ड इनकम. फॉर एग्जांपल, डेफर्ड टैक्स liability would arise if an expense incurred during the particular year, but the benefits have been deferred, so a period has been deferred till the next years for the preparing financial accounts. ठीक है, जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस होते हैं या अदर्स, so they generally categorize under the deferred expenditures. Okay, so ऐसे जिनकी वजह से ये differences आपको मिलेंगे. Which of the following is an example of deferred tax asset? ठीक है, so accelerated depreciation under tax laws compared to accounting books, provision for doubtful assets, income taxable before it recognized in the statement. C can be a major reason for this particular one. ठीक है, अच्छा ओके, बी भी है, बी ही है एक्चुअली. ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल एसेट अलाउ इन फ्यूचर टैक्स पीरियड. ठीक है, अच्छा ओके, प्रोविजंस वी हैव मेड फॉर द फ्यूचर पीरियड, सो दैट इज जहां पे जिनका इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है. ठीक है, deferred tax asset arise when an expense is recognized in accounting books
but is allow for a tax purpose in the future. Okay. If a company create provision for doubtful asset in the current years, but tax laws allow it as a deduction only when actually written off, the company record DTA because it will reduce future taxable income of that particular company itself. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन गाइस, जस्ट अ मिनट. So, direct health insurance premium can be claimed for policy budget by a person. Okay, just a minute. Huh? I have one session today. Okay, we have time. Okay, so a tax deduction for a health insurance premium can be claimed for policy bought by a person for himself, his or her spouse, and their dependent children's under section क्या होता है आपका 80D. ठीक है, सेक्शन 80D आपका. ठीक है, एंड अदर वन इज आपका इनकम टैक्स इस कितना होता है 25,000. ठीक है, ये हमने कुछ देर पहले देखा था अभी. ठीक है, सो 80D 25,000. अगर सीनियर सिटीजन होता है यहाँ पे तो आपका 50,000 होता है. ठीक है, सो दिस इज द वन. नेक्स्ट वन, सेक्शन 80C is one of the this what is the eligible investment in TDS, so sorry, फॉर टैक्स डिडक्शन और एग्जाम्पशंस. 80C में सबसे ज्यादा रिबेट होती है. ठीक है, तो आपका लाइफ इंश्योरेंस, पब्लिक प्रोविडेंट फंड्स, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स या अदर्स आपके. ठीक है, जो इसमें रहेंगे NSC एंड ऑल. The deduction is covered under 80QQB of Income Tax Act 1961, include royalty income. So 80QQB, it is something related to royalty income to the authors. ठीक है, जो बुक्स के ऑथर्स होते हैं उनको आपका रिबेट देता है. ठीक है, इन any income earned by author for participating in his profession, बिल्कुल. Any income earned as lump sum payment assigned of any of his interest in copywriting and all, बिल्कुल सही. Any income received as advance payment of royalties, this. ठीक है, तो ये सारे ही क्या हैं आपके करेक्ट हैं. So these are some areas, something related to royalty income. ठीक है, under section 194A, TDS rate for premature deduction. Okay, we have already discussed this question, sorry. What is the threshold for TDS 10% under 194? Interest paid on fixed deposit. तो कितना था आपका 40,000. For normal it is 40,000. For senior citizen it is आपका 50,000. ठीक है, हमने डिस्कस किए थे. 80QQB, 80QQB रॉयल्टी इनकम. सो आपका रॉयल्टी के लिए जो रिबेट है दैट इज 3 लाख. ठीक है, कितने का रिबेट होता है इनको आपका 3 लाख पर फाइनेंशियल ईयर. ठीक है, 80QQB भी और 80RRB. 80RRB इज रॉयल्टी इनकम फॉर पेटेंट फाइलर्स. अगेन द लिमिट इज 3 लाख. दोनों के केस में आपका 3 लाख का लिमिट रहेगा. ठीक है, which of the following condition is to be satisfied tax benefit earned under 80QQB? So individual claiming deduction be resident of India, बिल्कुल. Individual must have authored or co-author book. Individual must file income tax return. तभी आपको ये मिलेगा. So again all of the above will be right answer. Section 80U, person with disability. ठीक है, Section 80U, person with disability, offer tax individual suffer with disability, while Section dash offer tax benefit of an individual taxpayer dependent family members suffer with this. तो क्या होगा 80DD. ठीक है, this comes under 80DD. ठीक है, बेनिफिट क्या होते हैं? For partial disability it is how much 75,000 and for full disability it is कितना है 1.25 lakh. ठीक है, and you do not have to present medical bills and all. ठीक है, आपको medical bills को present करने की जरूरत नहीं है. You just have to present one certificate. ठीक है, 135 फॉर्म आपको फिल करना होगा and you have to basically submit one certificate which is issued by the authorized person. ठीक है, असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर में क्या डिफरेंस होता है? बहुत आसान है. ठीक है, सो फाइनेंशियल ईयर लाइक द करंट फाइनेंशियल ईयर इज आपका क्या चला है 2024-25. ठीक है, दिस इज योर फाइनेंशियल ईयर. ठीक है, जहां पे आप इनकम अर्न करो 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक. दिस इज योर फाइनेंशियल ईयर, द ईयर इन विच वी अर्न इनकम. ठीक है, असेसमेंट ईयर इज बेसिकली द ईयर इन विच टैक्सेस आर असेस्ड. मतलब जब आप इसके लिए
टैक्स असेस कब करोगे, आपका असेसमेंट ईयर क्या होगा इसका 2025-26 आपका, ठीक है। जो अगला बेसिकली क्या होगा आपका इन फाइनेंशियल ईयर होगा। तो इस तरीके से द फाइनेंशियल ईयर इज द ईयर इन विच इनकम इज असेस्ड, नो इनकम इज अर्न, ठीक है, इनकम इज अर्न, assessment is in which income are assessed and taxed, ठीक है। So B will be right answer for this particular one, बहुत आसान है। Under section 80U disability has been defined as blindness हो सकता है, hearing impairment हो सकता है, mental illness हो सकता है, ठीक है। So these all which of the following is required to claim deduction under section 80U, 80U के अंदर अगर आपको deduction लेने हैं, so there is not any documents required, बिल्कुल सही, we do not have to present any documents, we just need a certificate which is authorized by the medical authority and you have to submit through form 10IA, ठीक है। There no need to producing bills, true. One must submit medical certificate indicating the disability together with income tax return under section 139. Please do remember this. ये जिसके ऊपर हमने पहले भी बात किया था. So D will be right answer for this one. Next one. Royalties against patent. किसमें? आपका royalties against patent किसमें बताया था आपको? 80 RRB, ठीक है, 80 RRB. QQB आपका अगेन रॉयल्टी इनकम, किसको? आपका ऑथर्स को, ठीक है, ऑथर्स के लिए. 80U पर्सन विद डिसेबिलिटी, RRB दिस. TTA आपका सेविंग अकाउंट, ठीक है, ये किसमें? आपका एग्जम्पशन फॉर द सेविंग अकाउंट एंड द लिमिट इज 10,000, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है. सो C विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन. और 80 RRB का भी लिमिट इज हाउ मच? आपका 3 लाख एग्जम्पशन लिमिट आपका. 80 TTA of the Income Tax Act 1961 provide deduction up to इंटरेस्ट रिसीव ऑन सेविंग अकाउंट. तो कितना होगा आपका? 10,000 होगा, ठीक है. तो 10,000 अभी जस्ट हमने इस पे बात किया था ना कुछ देर पहले, ठीक है, पिछले क्वेश्चन के साथ ही. इंटरेस्ट इनकम अलाउ एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 TTA. TTA आपका TTA इंटरेस्ट फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट, इंटरेस्ट रिकरिंग डिपॉजिट, आपका एनी अदर डिपॉजिट, सो ऑल विल बी पार्ट ऑफ दिस वन, ठीक है. अब न्यू टैक्स स्लैब की अगर हम लोग थोड़ा सा एक नजर डाल लेते हैं न्यू टैक्स स्लैब के ऊपर, I'll for sure I'll come up with one case, ठीक है, जहाँ पे because it is required for our general purpose also, ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए जनरल पर्पस के लिए भी हम इस पे काम करेंगे. एंड दिस बिल गॉट पास, ठीक है, आपका फाइनेंस बिल 2025 के नाम से पास भी हो गया, ठीक है. सो व्हाट गवर्नमेंट दे जनरली प्रपोज ड्यूरिंग यूनियन बजट 25 एंड दैट बिकम हाईलाइट, मेजर हाईलाइट, ठीक है, फॉर द कंजम्पशन पर्पस, ठीक है, इकोनॉमिक जीडीपी बढ़ेगी हमारी. इनकम टैक्स स्लैब जैसे आपका दीज आर द लाइक 8 to 12 10%, ये हमारा जो स्लैब है. एंड लाइक पीपल आफ्टर गोइंग थ्रू द रिबेट्स एंड ऑल, सो दे कैन अचीव like up to 12 lakh or 12 salaried person, it is 12 lakh 75,000 if you add the deduction in all, ठीक है. So that will generally comes under this. तो इसके ऊपर I'll come up with a dedicated case और I will have some comparison also. जैसे उससे पहले 23 के अंदर आप जो प्रीवियस जो भी करंट ईयर के लिए हमारा है वो ये है, ठीक है. 3 लाख आपका नील, 3 to 6 लाख आपका 5%, 9 लाख आपका 10%, 12 आपका 15%, मोर देन 12 to 20 आपका 20%, मोर देन 15 लाख आपका 30%, ठीक है. उससे पहले आपका ये था. सो विल हैव वन कंपैरिजन आल्सो. ओके, सो दिस इज इट गाइस. तो आज के लिए इतना ही करते हैं. काफी लंबा हमारा डिस्कशन हुआ है इनकम टैक्स के रिगार्डिंग, ठीक है. दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन. बहुत डिटेल में मैंने आपको कवर अप किया है, ठीक है. और 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने के लिए मिल सकते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन पास्ट में पूछे गए हैं या एक्सपेक्टेड है, वो सारा डिस्कशन हमने यहाँ पे किया. आई होप सबको इसी लेंथ में आपका समझ में भी आया होगा. थोड़ा सा कौन से वीडियोस आपका देख लीजिएगा इफ यू हैव सम sort of confusion with TCS, TDS and all these kind of terminologies, तो वो आपको वहां से हेल्प कर जाएंगे, ठीक है. सो दिस इज माय टेलीग्राम ग्रुप गाइस, यू कैन कनेक्ट मी ओवर देयर. अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं, कोई क्वेरीज होते हैं, तो आप मुझे यहाँ पे लिख सकते हैं. आई ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट, ठीक है. और बढ़िया से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ठीक है. सो कोई भी अगर हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है तो दिस फील फ्री टू आस्क आप. और थोड़ा सा सेशन को शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, तो जिससे उनको भी आपका इन सेशन से आपका मदद हो सके, ठीक है. वी आर इन द फाइनल मॉड्यूल ऑफ AFM मॉड्यूल, ठीक है, AFM सब्जेक्ट, ठीक है. सो मॉड्यूल डी हमने स्टार्ट कर लिया. तीनों मॉड्यूल के कंपाइलेशन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है. तो जिससे कि आप जैसे कभी टाइम नहीं मिलता, अगर आप डेडिकेटेड चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएगा. तो और इसके अलावा और कुछ और हेल्प की रिक्वायरमेंट है, जस्ट फील फ्री टू आस्क, आई विल ट्राई माय बेस्ट, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं. जैसे ये खत्म होता है
तो आपके IN IFS की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे मॉड्यूल वाइज। विल स्टार्ट विद मॉड्यूल डी। मॉड्यूल डी सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि 17 यूनिट्स है, ठीक है। देन आपका आफ्टर डी वी विल कम विद मॉड्यूल सी, देन ए एंड बी, फिर इस तरीके RBWM, देन PPB विल बी टेकन केयर बाय दिस अमाउंट। तो इस तरीके से हम लोग पूरा आपका बाय द एंड ऑफ लाइक आपका मार्च इटसेल्फ, बाय द एंड ऑफ मार्च आई विल ट्राई टू कंप्लीट ऑल दिस। तो फिर आप रिवाइज करोगे, डाउट पूछोगे, वीकली सेशन भी रखेंगे लाइव आपका, जहाँ पे 2-3 घंटे का डिस्कशन पूरे मॉड्यूल के ऊपर, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। This is it from my side. Thank you for joining this session. Thank you for watching this session. Bye bye. Take care all. Have a nice day. Thank you.